Okay, so far, we started with the basics of kinematics, and हम लोगों ने we have covered basics. We have covered the quantities like the distance, displacement, the speed, velocity, and the acceleration. बहुत ज़्यादा detail में. अच्छा, we'll be just reviewing or recalling the equations of motions. We have a new member, so a bit of review so that he can catch up with us. देखें, we are learning about the motion. We are learning about the movement of any object in a single direction. That is, could be upward, could be downward, could be both, could be forward, could be backward. But we are talking a motion in a straight line only. It could be a diagonal also, but when we refer straight line, it means we are not talking about any vibratory motion, any oscillatory motion, any circulatory motion. We are just talking about a motion that an object that travels from one point to another point. That is what a motion is. So far, I hope Zia, that's your name, right? Yes, sir. Okay. So Zia, so far what we have discussed, अच्छा बिल्कुल सिर्फ मैं वो बेसिक वाली नॉलेज दे रहा हूँ जिसको कैचअप करने के लिए आज जरूरी है, ठीक है ना? एंड बाकी जैसे मैंने कहा था विल बी हैविंग द रिव्यू क्लासेस, तो उसके अंदर पूरा देखेंगे. सो फार जो ओ लेवल्स वाली नॉलेज थी उससे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आया. वो ये था कि वी डिफाइंड वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, एंड उसके लिए we learned a formula that was v is equals to displacement over time, and we discussed that what we discussed over here is that this formula was valid only for a certain motion as in a motion that is uniform, where the velocity is not changing, where there is no acceleration, where the forces are balanced. In case the object is accelerating, as in if the velocity is increasing or decreasing, and that too linearly, as in the velocity is increasing or decreasing linearly, that is the acceleration is constant, we won't be using the formula जिसको अभी हम लोगों ने देखा v is equals to s over t. For that, for such a motion where there is a constant acceleration, we use equations of motions. The only new thing, not the only new thing, but one of the new factor in AS kinematics is that we use equations of motion. These are the equations which we did not use in our O levels, which we did not learn in our O levels. The equations are S is equals to ut plus half at square. The equation is v square minus u square to as. The equation is v is equals to u plus at, and again s is equals to v plus u upon 2 into t. Now, in all these equations, S is the displacement of the object, V is the final velocity, T is the time taken, A is definitely the acceleration, and U is the initial velocity in all four equations of motion. These equations of motions are used for a motion for an object moving with a uniform acceleration, linearly increasing or decreasing velocity, and for a linear motion, as in the motion in a straight line. So throughout the kinematics of your AS, we'll be using them a lot. Okay? We did certain example questions. तो उसमें से I'll be discussing a few right now, right here, and later फिर जो है फिर हम उसको एक नई न्यू एक टॉपिक है वो हमने पढ़ना है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? So how do we use the formulas? How do we select कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल there was a situation given to us. The situation was कि a car was moving with a velocity of 30 meter per second, and it accelerated with a velocity with a rate of 2 meter per second. So a car that was moving with a velocity of 30 meter per second, it means it had an initial value of velocity that was 30. It accelerated, but like it was already traveling. After traveling a certain time, it accelerated at a rate of 2 meter per second square. It accelerated for like 10 seconds. The questioner asked that what would be the displacement covered during the acceleration. Okay. Now, in this entire data, पहले थोड़ा सा सिचुएशन को समझ लेते हैं. सिचुएशन में एक अहम चीज ये है कि जो हमें टाइम दिया जाता है, लाइक हमें दिया गया 10 सेकेंड्स, ठीक है, या हम हमारी जो ऑब्जर्वेबल मोशन है
वो सिर्फ उतना है जितनी सिचुएशन इसने हमें दे रखी है, जितनी उसने मांगी है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ हमारा ऑब्जर्वेबल जो मोशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर ही एक्चुअली एक्सेलरेटेड, वेयर ही स्टार्टेड टू एक्सेलरेट, दैट इज द पॉइंट जहां से हमने अपने मोशन को ऑब्जर्व करना है। पॉइंट इज कि मे बी ये उससे पहले से ट्रैवल करता हुआ आ रहा हो, एंड डेफिनेटली इट वाज ट्रैवलिंग बिकॉज इट सेज दैट इट ऑलरेडी हैड अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये पहले से एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा। एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, उसने ये भी नहीं बोला कि 10 सेकेंड्स बाद वो रुक जाएगा, तो इट सेज कि 10 सेकेंड्स बाद भी वो मूव कर रहा होगा। उसने कहा सिर्फ 10 सेकेंड्स का जो ड्यूरेशन था जिसमें वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसमें उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो इट मींस बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट कंसर्न, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दिस थोड़ा सा फ्रैक्शन। ठीक है। Now, for this information, we are given with initial velocity, acceleration time, displacement is being asked, but velocity is not being given, and neither it is being asked. तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इन चारों में से, ये जो चार इक्वेशंस है द हाइलाइटेड वंस, इनमें से मुझे एक ऐसी वेलोसिटी, एक ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है which works without the term final velocity. इफ आई यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा, यू कैन सी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आई कैन नॉट यूज दिस वन। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाला देखता हूं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है एंड फाइनल वेलोसिटी है, आई कैन नॉट यूज दिस वन एज वेल। अगर मैं थर्ड वाला देखता हूं तो इट गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, एंड देयर इज नो वेलोसिटी ओवर हियर, तो इसका मतलब है कि दिस इज द फॉर्मूला दैट आई शुड यूज। तो किस तरह हम इसको यूज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे द फॉर्मूला S is equals to ut plus half at square. Now u is the initial velocity that was 30. T, the time in which during which it was accelerating, that was 10 seconds only. Half is just a constant over here. Acceleration is given 2 meter per second square, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। In time that is it's actually 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो 10 लिख देते हैं। तो यहां से मेरे पास एक डिस्टेंस आएगा दैट वुड बी अराउंड 400 मीटर। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोना यूज दीज इक्वेशंस। we'll be using these, we'll be doing a much more practice over here, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसको ऐड करना है, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्टिकल मोशन। ठीक है। तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा वर्टिकल मोशंस भी काफी ज्यादा उसमें क्वांटिटी में आ रहे होते हैं, तो इस वजह से हम पहले वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर देते हैं ताकि एक साथ में हमारी प्रैक्टिस चले। ठीक है। The thing is, what is motion under gravity? What is, अच्छा, there's a difference between a simple vertical motion and there is a difference between a motion under gravity. इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। For example, I have an object in my hand and I move it vertically, holding it and I'm moving it. That is a vertical motion. I move this object upwards vertically, and probably I move this object, yeah, brought this object downwards. That's again a vertical motion. But this is not a motion under gravity. When we say that any object is moving under the gravity, so it means that there is only one force acting on it, one driving force acting on it, that is the gravitational force. मतलब the possibility, the probability only of throwing an object upwards, मतलब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक दूं, मतलब बिल्कुल जैसे हम वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं upwards, so that is a vertical, that is the motion under the gravity. या फिर if I drop this object downwards, तो this is a motion under gravity. रीजन इज, फर्क ये है दोनों में कि अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो इट केम डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो इट वुड डीसेलरेट, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंड दैट अगेन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के लेके जा रहा हूँ तो दैट्स नॉट ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट्स बिकॉज ऑफ द फोर्स मेरा हैंड इसके ऊपर जो लगा रहा है, या फिर मैं इसको पकड़ के नीचे लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज अगेन ड्यू टू द फोर्स जो कि क्या कहते हैं, मेरा हैंड लगा रहा है। डेफिनेटली इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट जरूर है, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट इस पे जरूर होगा, इफ आई एम, इवन इफ आई एम मूविंग इट लाइक यू नो विद एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन मैं इसको अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी नहीं कह सकता। ठीक है ना।
तो यहाँ पे इस वक्त जो हम चीज कर रहे हैं दैट इज मोशन अंडर द Sir, ग्रेविटी जी। you said that when we're talking about motion under gravity, we're only talking about motion that, like, the only force that's acting on the object is its weight, right? Or it's only going to go with the acceleration of 9.81. But when we throw an object upwards, wouldn't the thrust that we threw it with, wouldn't that be a force applied on the object? अच्छा, कैन यू रिपीट द लास्ट वन, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट? So we're throwing it with a force, right? So या wouldn't that thrust be a force, an additional force? नो, अच्छा, that additional force when you're actually throwing it upward, that was just to provide it a certain initial velocity. Once it leaves my hand, the effect of that force is gone, right? It's no longer in contact with the object which was applying the force. So as soon as it leaves my hand, it's only under the action of the gravity. So my motion under the gravity starts at the position where it leaves my hand. उससे पहले it wasn't under the gravity. Got it? Yeah. So we are specifically talking about a motion which is not in contact with any driving force. Okay? For example, a lift, the elevators. It moves upwards and downwards due to the help of the pulling cables. So that's not motion under the gravity. God forbid if the cables break and the lift falls. That's what motion under the gravity is. Okay. So what motion under the gravity is, पहले उसके बारे में we'll write a few points down over here. आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? हम लिख रहे हैं कि if an object is thrown vertically upwards. This thrown, the word thrown over here has an importance. ठीक है, thrown vertically upwards or drop again, drop as a meaning, drop vertically downwards. It is under the influence of gravitational force. Such a motion is referred as motion under the gravity. ठीक है, अच्छा, now the term influence का क्या मतलब है? जब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट एक्सेलरेशन, तो वहां पे वी डिस्कस्ड वन थिंग दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय अ फोर्स, ठीक है? ऑल्दो कि हम यहाँ पे फोर्स को नहीं पढ़ रहे, लाइक द चैप्टर इज नॉट रिगार्डिंग फोर्सेस, लेकिन हमें उस फोर्स का जरूर सोचना है कि वो जो एक्सेलरेट करवा रही होगी. Any object that is under the gravitational force, under the influence of the gravitational force, तो वहां पे जो acceleration होगी वो भी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी. बी इट एनी ऑब्जेक्ट, उसका मास कुछ भी हो, किसी भी हाइट से ड्रॉप किया हुआ हो, या कितनी ही वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया हुआ हो, the value of its velocity, the value of that acceleration would be only the gravitational acceleration. ठीक है? तो चाहे वो नीचे आ रहा हो चाहे वो ऊपर जा रहा हो, अब वो नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन होगा, डिसेलरेशन होगा, या कुछ होगा, वो अभी देखते हैं. तो पहले एक चीज यहाँ पे हमने पॉइंट ऐड करना है इसके अंदर. सच एन ऑब्जेक्ट
कौन सा ऑब्जेक्ट? वो जो मोशन अंडर द ग्रेविटी परफॉर्म कर रहा है, सच एन ऑब्जेक्ट ने लिखा सच एन ऑब्जेक्ट एज अ कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, बल्कि मैं रीजन भी लिख देता हूँ। कांस्टेंट, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। डेफिनेटली एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आएगा, लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे भी हम। अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए, ठीक है ना। सच एन ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और वो वैल्यू क्या है आपके पास? referred as g, gravitational acceleration, and the value is 9.81 meters per second, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, इसको हमने कहा कि कांस्टेंट है, 9.81 है, ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस बात का क्या मतलब है, अगर गौर से समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मोशन एंड मोशन की जो इफेक्ट्स हैं वो समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए, केसेस कुड बी टू। ऑब्जेक्ट ईदर, एक ऑब्जेक्ट इज ईदर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स या फिर ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो दोनों केसेस को आप एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग डाउन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स एज इन, डाउनवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज चले वो हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन क्योंकि हम हमारे लिए वो बात इतनी अहम नहीं है, हम इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे रख करके बात कर रहे होते हैं। चले, तो एक चीज समझते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रखा हुआ है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, तो लेट्स से कि दिस वाज एन ऑब्जेक्ट जिसको मैंने एक सर्टेन वेलोसिटी से किया था ड्रॉप। ड्रॉप करने का मतलब ये है कि जस्ट लीविंग इट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जस्ट लीविंग का मतलब ये है कि इट वाज इनिशियली स्टेशनरी, एंड यहां से मैंने इसको रिलीज किया, and due to the acceleration of gravity, due to the pull of gravity, it starts to move downwards. Its acceleration was 9.81, its initial velocity was zero because drop किया है यहाँ पे। तो अहम चीज ये है समझने वाली कि अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी वुड बी जीरो। अगर मैं इसको थ्रो करता नीचे, सो दैट्स अगेन अ केस, मैं थ्रो करता, दैट वुड हैव बीन अ मोशन अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि थ्रो करूंगा, छोड़ दूंगा ना जब मैं, एज सून एज आई लीव इट, तो इसका मतलब ये है कि द फोर्स, मेरे हाथ जो लगा रहा था, इट्स नो लॉन्गर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। बट ओनली द डिफरेंस वुड बी, नाउ इट वुड बी हैविंग सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी अभी भी 9.81 रहेगी, इस फोर्स का जिससे मैंने फेंका था उससे सिर्फ इतना इफेक्ट रहेगा कि इसकी इनिशियल वैल्यू इज नॉट जीरो नाउ, ठीक है। तो इफ इट्स ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। अच्छा, सिंस इट विल नाउ मूव डाउनवर्ड्स, तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो होगी डाउनवर्ड्स। जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होगी। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सिंस फोर्स डाउनवर्ड एक कर रही है, तो एक्सेलरेशन आपके पास होगी कांस्टेंट, दैट इज 9.81। अगर देखो वेक्टर्स के टर्म्स में बात करेंगे, तो जिया दे
ना जो अब पॉइंट आ रहा है, देयर माइट बी अ पॉइंट कि शायद आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेना, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर। लेकिन उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं एक वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो इसकी वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो एक्सेलरेशन वुड अगेन बी नेगेटिव। वाई नेगेटिव? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है। अब मैं इस बात को थोड़ी देर इग्नोर कर दूं कि बोथ ऑफ देम आर डाउनवर्ड एंड नेगेटिव, मैं इस बात पे फोकस क्यों नहीं करता कि दे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है, तो इसका मतलब है कि द वेलोसिटी गो डाउन इंक्रीज। तो इन दिस केस this value of gravity is positive acting as a positive acceleration। ठीक है, मतलब वेलोसिटी वुड इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेगी बेटा? एक्सेलरेशन का यहाँ पे मतलब ये होगा कि आफ्टर अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, जब ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां आकर के मौजूद होगा, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.81। ठीक है। फर्दर जब ये नीचे गिरेगा, फर्दर 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी अब हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 9.8। फर्दर 1 सेकेंड गुजर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.8, आई गेस, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ठीक है। कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ? मैं इसको 9.81 से एड अप करते चले आ रहा हूँ, इट्स 19.6। मतलब एक्सेलरेशन 9.81 होने का मतलब ये कि हर सेकंड 9.81 का एक इंक्रीज आता रहेगा। अगर ये फर्दर, इफ इट्स अलाउड टू गो डाउन, अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस से हमने इसको फेंका था, अगर ये फर्दर नीचे जाता है, तो अब जो इसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर फर्दर सर्टेन टाइम, तो वो आपके पास इसके अंदर, इसी के अंदर 9.81 ऐड कर दे, दैट वुड बी 29.43। तो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ 9.81 मींस कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। एक्सेलरेशन 9.81 होने का मतलब है कि वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट होगा 9.81, हर सेकंड 9.81 से वो बढ़ती चली जाएगी। माइंडेड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है। लेट्स से कि दिस वाज द लास्ट मोमेंट, और इसके बाद आ गया था ग्राउंड। मतलब यहां पर ये सरफेस को हिट कर रहा है। ठीक है। तो वेन एवर वी विल बी रेफरिंग द वर्ड फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी द लास्ट ऑफ द वेलोसिटी इट अचीव्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है। अब एक जहन में सवाल आता है, सर इफ इट्स अल्टीमेटली हिटिंग द ग्राउंड, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए। नहीं, मैंने कहा हमारा ऑब्जर्वेबल मोमेंट क्या है, मोशन क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। बिल्कुल आखिरी वेलोसिटी जो मैक्सिमम बढ़ी थी, तो मैंने कहा था तीसरे सेकंड के ऊपर ये जमीन पर गिर गया था, तो इसका मतलब है थर्ड सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट 9.81। ठीक है। अब अगर इसी को मैं रिवर्स डायरेक्शन में ले जाऊं, रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह लेके जाऊं कि लेट्स से कि इस वक्त मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज नॉट ड्रॉप, एक्चुअली इट्स थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है। तो अब जो मैं केस देख रहा हूं, दैट इज थ्रोन अपवर्ड्स का। मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। अब डेफिनेटली जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, सो दिस टाइम द वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो। अब ये जीरो नहीं हो सकती, इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट कि मैंने इसको वही 29.4 की वेलोसिटी से ही फेंक दिया ऊपर। अब जरा गौर से समझिएगा बात को कि if we are throwing it upwards, तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी is upwards, that is positive, right?
इन डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अनकंडीशनली डाउनवर्ड होगी, irrespective of the fact कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, the value of the gravity, the direction of the gravity is always downwards, क्योंकि डायरेक्शन जो है ना वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के ऊपर, वो तो डाउनवर्ड ही है। तो अब सिंस आपके पास दी ग्रेविटी, the acceleration and the velocity are in opposite direction, तो यहाँ पर there would be a decrease in velocity, तो यहाँ पे 9.81 as a deceleration काम करेगा। ठीक है, वैल्यू वही है बट इट्स जस्ट एक्टिंग एज ए डिसलेरेशन। डिसलेरेशन का मतलब ये है कि अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा तो एक सेकंड, मतलब वही वाली कहानी है जो दोबारा रिपीट होगी, आफ्टर अ सेकंड द वेलोसिटी वुड डिक्रीज टू अ वैल्यू ऑफ, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे हम इसको डिक्रीज करते चले जाएंगे, वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी 19.6। ठीक है, अच्छा, फर्दर ये ऊपर ज्यादा चला जाएगा, इसकी वेलोसिटी अब फर्दर कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इसकी वेलोसिटी अगेन हो गई थी 9.81, एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये वाली वैल्यू रखी थी ताकि हम जरा इजीली इसको देख पाए। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दिस टाइम फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी जीरो। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे एंड इफ इट्स फ्री टू मूव अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी या मैक्सिमम हाइट उस पॉइंट पर कहलाएगी जब ये ऑब्जेक्ट अपनी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये आपके पास कहलाएगी लाजमी तौर पे फाइनल, एंड जो हाइट अचीव होगी उस हाइट को मैं कहूंगा मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम हाइट इसलिए बोल रहा हूँ सिंस द वेलोसिटी बिकम जीरो देयर इज नो मूविंग फर्दर, आगे तो जाएगा नहीं, वेलोसिटी जीरो हो चुकी हुई है, तो वो जो हाइट थी वो मैक्सिमम थी, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकती। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोशन। अब यहाँ पे आप, Sir, जी, I have a question. Can we say since the acceleration is constant and the velocity is increasing, with a specific amount, can we say that it's linearly increasing and it is constantly it is increasing? what it is what it's what Linearly increasing. Yes, it is linearly increasing. Yes, it is linearly increasing. This is what linear means actually. We are actually saying the similar thing. Linear means, देखिए linear का increase, linear मतलब increasing with an equal amount, right? तो हमने equal amount से तो ऐड किया था ना 9.81, फिर twice of 9.81, फिर thrice of 9.81, अगर यहाँ ग्राउंड नहीं आता फर्दर नीचे जाता तो 4 times of 9.81, राइट। अच्छा, एक बात शायद आप लोगों ने नोट की और हो सकता है आपने नोट की और आपको उसका जवाब भी मिल गया हो, वन अमेजिंग थिंग दैट यू शुड नोटिस ओवर हियर, एक एक सेकंड बाद मैंने डिस्टेंस बढ़ाया है ना। पहले सेकंड द डिस्टेंस वाज दिस मच, दूसरे सेकंड डिस्टेंस वाज दिस मच, तीसरे सेकंड डिस्टेंस वाज इतना सारा, एंड व्हाई इज दैट सो? Since the velocity is increasing, the distance covered is also increasing. एग्जैक्टली, फर्स्ट सेकंड इट कवर्ड 9.81 meters in 1 second, in the second it covered 19.6 meters in that particular second. In the third second, it covered 29.4 meters in that second. So this is how do we understand a motion. ठीक है, अब देखिए नोट करने वाली बातें क्या है यहाँ से जो अब हमने जहन में बिठा लेनी है, जो की पॉइंट्स है। आई होप यहाँ तक, जिया आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. चले, अब देखिए जो की फीचर्स हैं जो हम लोगों ने अपने जहन में बिठाने हैं वो ये कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, अच्छा कंडीशन ये है कि वो ऑलरेडी स्टेशनरी था। ठीक है, हम एक सवाल करेंगे प्रोबेबली आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं इस क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज द वैल्यू with which it hits the ground। ठीक है,
मतलब टकराने के बाद नहीं, टकराने से पहले जो वैल्यू थी ना, बिल्कुल जिससे वो टकराया था। क्या मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये कह सकता हूं, कैन आई से दैट द वैल्यू विद विच इट हिट्स द ग्राउंड solely depends upon the height from it was dropped? ऐसा है? The final velocity would depend upon the height जिससे मैंने इसको फेंका था। क्या ये बात कही जा सकती है? Yeah, maybe because since we started, if there was more distance to be covered, then it would take 4 seconds and the value would increase more. एग्जैक्टली exactly. अगर उसके पास थोड़ा सा रूम और होता तो वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती। तो इट मींस कि अगर आपने मतलब क्योंकि आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना इनिशियल वेलोसिटी, यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इनिशियल वेलोसिटी, तब तब की कैसी बात होगी? तो जितना ज्यादा हाइट से फेंकोगे उतना ज्यादा जोर से वो जमीन पर आकर के गिरेगा। द रीजन इज के उसके पास इतना रूम था टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वही थी, लेकिन जो बढ़ने के चांसेस थे, जो टाइम लग रहा था वो ज्यादा था। ठीक है ना? तो एक एक अहम पॉइंट जो यहाँ पे हमने लिखना है। अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के हमारे से पॉइंट्स हैं जो हम लिख रहे हैं। द फाइनल वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द ड्रॉप हाइट। ठीक है? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट, ये कंक्लूजन है जो हमारी इस अंडरस्टैंडिंग के थे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upwards, vertically upwards, initial velocity is not zero, it's not zero, ठीक है? rather final velocity is zero। ये अहम पॉइंट है। ठीक है? अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट ये है कि v is zero at maximum height। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बोलूं, अगर आपसे बोलूं कि जनाब एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका था अपवर्ड्स एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो आपके पास हाइट आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके और उसने बोला मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, तो वो ये नहीं बोलेगा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, मतलब द वैल्यू इज गिवन। ठीक है? अच्छा, द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, जिसको ये गेन, फाइनल वैल्यू ऑफ द हाइट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाइट जो ये गेन करेगा, कैन आई से दैट द वैल्यू ऑफ हाइट गेन बाय द ऑब्जेक्ट solely depends upon the initial value of the velocity, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका था। इफ आई थ्रू अप इट विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ डिक्रीज तो सेम है। तो अंटिल जीरो वो पहुंचे, इट वुड टेक अ ग्रेटर हाइट। और अगर मैं लाइट सी वेलोसिटी देता हूँ, वो जल्दी से जीरो पर आ जाएगा। अरे मैं समझ में? तो इट वुड रिक्वायर अ ग्रेटर हाइट टू रीच अप टू अ जीरो पोजीशन, क्योंकि एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। आप डीसेलरेशन तो चेंज नहीं कर रहे कि जनाब, जैसे हम गाड़ी को अगर चला रहे हैं और कम डिस्टेंस में रोकना है, तो वी अप्लाई अ ग्रेटर ब्रेकिंग फोर्स। तो उसका मतलब ये होता है कि वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डीसेलरेशन। सिंस यहाँ पे हम डीसेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता है। सही है? तो ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सर ये Yes. वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा देखें, क्रिकेट खेलिए ना जी आप? खेले है ना? जी सर। क्रिकेट खेले है ना? जी जी। अच्छा, वो अक्सर हम लोग स्कूल में गेम खेलते हैं, वी थ्रो द बॉल अपवर्ड्स और हमें हमें हम कैच कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, खेला होता है कभी कभी सबने, कैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो व्हेन यू वांट द बॉल टू गो अ वेरी हाई, एट अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ हाइट, व्हाट डू यू डू? यू प्रोवाइड अ ग्रेटर इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा ही है? जी सर।
तो इसका मतलब ये है कि द हाइट अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट वाज प्रोवाइडेड टू इट। ऐसा है। हम्म। बस ये वाली बात हमने कही कि द हाइट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है पॉइंट? ओके। पॉइंट को हम लिख लेते सही हैं। सर। मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। ये तो हो गए थे की फीचर जो हमने देखे थे। अब देखिए मैथमेटिकली हमने क्या करना होगा। मैथमेटिकली की फीचर्स क्या हैं वो और से सुनिए। जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है तो मुझे ये बताइएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड तो इज इट एक्सेलरेटिंग? इट इज एक्सेलरेटिंग, राइट? Yes. तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को इन कैलकुलेशंस ओनली, चले मैं इस बात को नहीं करता। ये अभी एक सवाल मैं करवाने वाला हूँ जिसमें फिर आप वो गलत हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, इफ इट्स ड्रॉप तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 9.81। इफ इट्स थ्रोन अपवर्ड्स तो इसकी डीसेलरेशन की वैल्यू इज 9.81। नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो चीज है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना? क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसमें एक देयर इज अ बिट कंफ्यूजन। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह कि वी यूज द सेम इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हमारे पास जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस, अब at की जगह मैं लिख दूंगा g इंटू टी। वैसे तो मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वील बी यूजिंग द सेम वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब मैं सिंपली ए के साथ भी सॉल्व कर सकता था और वैल्यू 9.81 रख देता हूँ। और सिंपली द थर्ड फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g। अच्छा, अक्सर टीचर्स यहाँ पे एच सिखा देते हैं, गलत नहीं है। अक्सर एस रख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो विच एवर सूट्स यू, मेरे हिसाब से मतलब अगर माय ओपिनियन वो ये है कि आई नेवर इंट्रोड्यूस कि भाई इस तरह करो। वी हैव द सिंपल फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, एक्सेलरेशन की जगह 9.81 रख देंगे, राइट? अब कंफ्यूजन का यहां तक की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? ये बताइएगा। Yes. चले, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मैथमेटिकली। यहाँ पे जो एक चीज आप लोगों को स्लाइटली तंग करेगी इनिशियली और जो लेटर ऑन पे इंशाल्लाह वील डू इनफ प्रैक्टिस, वो ये है कि सर व्हेन टू कंसीडर द वैल्यू नेगेटिव एंड व्हेन टू कंसीडर द वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है ना? तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो वो तो अभी से अंदाजा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ, मतलब अगर आप नहीं स्मार्ट तो भी तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड, आई नीड अ पेज ओवर हियर। It can depend on the convention of the question, right? Like if the question asks us to take the if it's throwing it upwards and we can use it as 9.81 instead of negative 9.81. अच्छा, there's it's totally depends up to you, ठीक है ना, how you are trying to solve it. So we have a complicated method also and we have a simple way also. I won't name it trick, it's not a trick, it's a simple way. तो हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो विच एवर यू गाइस, जिस मेथड से आप लोग कंफर्टेबल हो गए ना सर, ये मैथमेटिकली हमें आसान लग रहा है। देखिए वन इज कॉन्सेप्ट, पूरी फिजिक्स में ना एक चीज ध्यान में रखिएगा इन योर एंटायर सिलेबस। वन थिंग इज कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग अब पढ़ चुके हुए हो, दैट यू अंडरस्टैंड। अनदर थिंग इज मैथमेटिकल methodologies। ठीक है ना? एवरी स्टूडेंट इज कंफर्टेबल विद डिफरेंट मैथमेटिकल methodologies। सही है। वील डिस्कस सारे पॉसिबिलिटीज जो जो होते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आई यूजली आस्क द स्टूडेंट, भाई आप लोग किसके साथ कंफर्टेबल हो? दे से सर ये वाला जो आपने बताया वी आर डन। तो फिर हम उसी को फॉलो करते हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है पेपर में? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर के।
ठीक है, मैथमेटिकल मेथडोलॉजीज आर डिफरेंट, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा जब जब इसमें होगा। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters, ठीक है। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। There is an object that was dropped from a height of 20 meter above the ground and we are supposed to find out the final velocity. सबसे पहले let's see कि हमें information क्या क्या given है। हमें information when the examiner says drop, तो उसने हमें information दी कि acceleration initial velocity is 0। दूसरी बात, इसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि acceleration is actually gravitational acceleration because it is dropped, vertical motion की बात कर रहा है। दूसरी तीसरी चीज जो उसने हमें दी वो था डिस्प्लेसमेंट, दैट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और द हाइट वाज 20 एंड वी आर आस्क्ड अबाउट फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज नहीं है आपके पास? वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टाइम ओवर हियर, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट योर इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो वी हैव one equation of motion which is time free, and what is it, Alina? Which one? Which formula should be used? We could use, I'm not थर्ड sure. फॉर्मूला। Third formula, which one? V square minus U square? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। We'll be using this one, alignment. अच्छा, Yeah. अब देखो, मैं सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन बताता हूँ, मेरा कंफर्ट जोन एंड वो मेथडोलॉजी जो मैं यूज करता हूँ। मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्रेविटेशनल मोशन के लिए आई डू नॉट कंसिडर देम एज 2GS। A is a general letter for acceleration, be it any acceleration provided by a force or be it the gravitational acceleration. I'll just simply write 9.81 whenever it is a vertical motion, ठीक है। अच्छा, one thing के फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो आई सिंपली राइट फाइनल वेलोसिटी एज इट इज, ठीक है। उसके बाद सिंस आई न्यू के इट इज ड्रॉप्ड, तो आई नो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। मैं चाहूँ तो इसको ना भी लिखूं, मैं v स्क्वायर लिख दूं, लेकिन वंस शो द एग्जामिनर दैट वी नो दैट या वी हैव प्लेस 0 ओवर हियर, तो एक आध स्टेप दिखा देना एग्जामिनर को उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ सैलुरेशन। तो लेट्स से कि मैंने 9.81 यूज किया नेगेटिव, ठीक है। और फिर मैं रखता हूँ, अच्छा वाई एम आई यूजिंग 9.81, नेगेटिव 9.81, वाई एम आई राइटिंग नेगेटिव 9.81? वाई इट्स नेगेटिव? जल्दी बता दो, अभी सर डिस्कस किया मैंने है। मैंने तो पॉजिटिव यूज किया है, क्यों पॉजिटिव यूज किया आपने? क्योंकि ड्रॉप हो रहा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स पॉजिटिव होगी। एंड व्हाट अबाउट यू, अलाइना? I think it's going to be positive as well. अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंफ्यूजन बताता हूँ। If we follow the vector direction, considering that कि sir, since the acceleration is downward and it has to be negative, तो अगर मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं ना, तो मुझे ये 20 को भी माइनस में लिखना चाहिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड हो रही है ना। इफ इट्स ड्रॉप फ्रॉम हेयर, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हुई। एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम इसको जो नेगेटिव लिख देते हैं,
लेकिन हम कभी भी इसको नेगेटिव नहीं लिख पाते, इस वजह से आंसर गलत आता है। एक छोटा सा सीन, मतलब आसान सा एक तरीके कार, जिसको आपने जिया भाई ने अभी बोल भी दिया कि सर सिंस इट इज एक्सेलरेटिंग, तो आप इसको सिंपली पॉजिटिव लिख दें, राइट। मतलब आप जो ओलिवस वाले कन्वेंशन से ना कि वी नो दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स तो इट हैज टू एक्सेलरेट, तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करें। एंड अगर इफ इट्स गोइंग अपवर्ड्स तो डेफिनेटली वी नो दैट फॉर श्योर ये डिसेलरेट होगा, ऐसा ही है ना। तो अपवर्ड जाते वक्त आप क्या कर लोगे उसको, आप उसको कर लोगे नेगेटिव कंसीडर। मैंने इसको फिक्स क्यों नहीं किया, मैं अभी पहले तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9.81 20 I जल्दी। don't understand why we are saying that if you're going to take negative acceleration, we have to take negative displacement as well. Because if the object is being dropped from a height of 20 meters, that means the original position is there. So the negative, wouldn't it be above the original position or in the... देखें, the negative was the negative direction downward, the negative direction was for downwards, the upward direction was for positive direction was for upwards. Let's say this is the value, this is the reference point जहां से मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है। अब after falling a distance of 20 meters, if I have to locate कि where is the, how much displacement was covered, तो वो जो वेक्टर डायग्राम में बनाऊंगा तो आई सिंपली ड्रॉ एन एरो विच इज डाउनवर्ड्स, showing that that displacement was covered downwards, right। अब ये बात जहन में सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए आती है कि यहाँ पे नेगेटिव लिखना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं देख, अगर इफ टेक्निकली देखें तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को क्यों देखें, why to consider this confused situation, why not to consider the simple method कि if the velocity is increasing plus 9.81, if the velocity is decreasing negative 9.81, when would be the velocity decreasing, जब ऊपर निकल जाए। क्लियर है बात। Okay, and whenever we're using negative acceleration, we're going to use negative displacement as well. नो वी ओनली फॉर डाउनवर्ड मोशन। अगर अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो लेट्स से कि अगर मैं बोलूं कि इसको मैंने ऊपर ही फेंका था, सो द डिस्प्लेसमेंट इज नाउ पॉजिटिव बट द एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये कितना कंफ्यूजिंग है ना, तो इसलिए इसको जहन में रखने के लिए आपने एक की चीज याद रखनी है, जिसको मैं बोल रहा था कि मैं इसको ट्रिक तो नहीं कह रहा, मेथडोलॉजी फॉर मैथमेटिकल क्वेश्चंस। मैंने इसको क्यों कहा फॉर मैथमेटिकल क्वेश्चंस, अभी समझाता हूँ। अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है अगर, तो वेलोसिटी वो डेफिनेटली डिक्रीज। तो ऐसे में आपने जी की वैल्यू या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव 9.8 पर ली। इफ इट्स ड्रॉप, तो वेलोसिटी, यू नो दैट कि आप ड्रॉप कर रहे हो तो वेलोसिटी हैज टू इंक्रीज, तो वहां पे आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव 9.81 कंसीडर करेंगे। जस्ट रिमेंबर दीज कन्वेंशंस, सिंपल सिंपल, ऐसा है। Yeah. चले, नाउ वन, अच्छा, वन क्वेश्चन या वन थिंग कि मैंने इसको ये क्यों लिखा फॉर मैथमेटिकल क्वेश्चंस ओनली। अब एक चीज दिखा रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। वन क्वेश्चन जो हमने देखना है, मैं बार बार इसको मैथमेटिकल के लिए ही क्यों कह रहा हूँ, एग्जामिनर प्लेज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड ये शायद बाद में पहले भी बता चुका हूँ। द ओनली वे इज कि हम उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ लें एंड इट्स नॉट दैट हार्ड। क्वेश्चन नंबर 74 को एक दफा देखिएगा। इट सेज दैट अ बॉय थ्रोज अ बॉल vertically upwards,
It rises to a maximum height where it is momentarily at rest and then falls back, मतलब downward. Which row gives the acceleration of the ball at a various stages in its motion? Take vertically upward as positive, ignore air resistance. Ignore air resistance का मतलब क्या था? इग्नोर एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जी की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट ही रहेगी. तो देखिए, तीन डिफरेंट मोशंस हैं आपके पास और तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं आपके पास. वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज राइजिंग अपवर्ड्स, जिस वक्त वो ऊपर जा रहा था उस वक्त की एक्सेलरेशन बताएं. उस वक्त की एक्सेलरेशन बताएं जब वो मोमेंटरीली एट रेस्ट पे था. ठीक है. एंड थर्ड इक्वे थर्ड मोशन, व्हाई इट्स नॉट मेकिंग अ सर्कल, तो पकड़ो उसको. एंड द थर्ड मोशन इज व्हेन इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स. अब बताइए यहां पर व्हाट वुड बी द वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव? It's D. इट्स डी. जिया साहब. सर राइजिंग के वक्त तो माइनस में होगा एक्सेलरेशन, ठीक है. फॉलिंग के वक्त पॉजिटिव में होगा, तो मेरे हिसाब से ए होगा। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर? वो नहीं समझ में आ रही सर, मैक्सिमम हाइट वाला। चलिए, अब सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वहां पे जो मैंने लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था फॉर मैथमेटिकल क्वेश्चंस ओनली. अब बहुत ध्यान से समझिएगा. when the object was rising upwards, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी बेटा? अपवर्ड्स. लेकिन एक्सेलरेशन का एक कर रही थी डाउनवर्ड्स. एंड उसने कहा टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यहां पर हो गई नेगेटिव. जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रहा था तो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वाज डाउनवर्ड्स, नेगेटिव, and the direction of the acceleration was also negative, downward. ठीक है. क्योंकि उसने कहा कि वेरियस स्टेजेस के ऊपर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है. हम जो कैलकुलेशन में करते हैं इट्स जस्ट फॉर द सेक, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ ईज. एक्चुअली वो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होता है. यहाँ पे वाई डज द पॉजिटिव थिंग वर्क? बिकॉज आप ये देखें, मैंने नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट भी था ना, वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ था, इसी वजह से इट वर्कड ओवर हियर. ठीक है ना. लेट्स से कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो आप इसको नेगेटिव लिखते और इसको क्या लिखते, पॉजिटिव लिखते ना. तो सिंपली आप आंसर में सिंपली क्या कहते हो, सर अगर ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव लिख दूंगा. ऐसा नहीं है कि द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नो, the resultant sign is negative because this was positive and this was negative. And when it was moving coming downwards, both were negative, so resultant sign was positive. इसलिए we did not, even consider writing negative over here. Only mathematically. Practically, नीचे आते वक्त ऊपर जाते वक्त दोनों केसेस में the acceleration was acting downwards. So it is always towards the center, so always acting, always having a negative value. Get this point? Got this point? कंफ्यूजन है थोड़ी सी, आई नो दैट. कॉन्सेप्चुअली इट्स नेगेटिव, मैथमेटिकली वो इवेंचुअली नेगेटिव हो जाता है बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. ये वाली बात समझ में आई? तो जिस वक्त इट वाज राइजिंग द वैल्यू वाज नेगेटिव, जिस वक्त इट वाज फॉलिंग द वैल्यू वाज नेगेटिव. पहले तो मुझे बताइए आप दोनों की यहां तक क्लियर है, ताकि फिर मैं बीच वाला स्टेप बताऊं व्हाट हैपेंड एट द मैक्सिमम हाइट. Yes, I got it. हाँ जिया. थोड़ा बहुत क्लियर है। चलो. वो नीचे आते वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा दोनों वैल्यूज कैसे नेगेटिव है, एक्चुअली तो वो पॉजिटिव हो जाएगा आखिर में। हाँ, जब देखो, जब तुम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालोगे ना तो तुम लिखोगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए एस.
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लिखोगे, वेलोसिटी भी नेगेटिव लिखोगे, तो अल्टीमेटली वो सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। लेकिन वो कलेक्टिवली फॉर्मूला में था, इसने इंडिविजुअली वैल्यू पूछी है। व्हाट इज द वैल्यू इंडिविजुअली, इंडिविजुअली साइन क्या है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव है, ओके। आई बात समझ में आप, हम्म। वहां पे कलेक्टिवली पॉजिटिव हो रहा था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे था, क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, कर रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स या नहीं कर रही थी? Yes. If the gravitational force was there, then the gravitational acceleration was also there, and जो भी डायरेक्शन फोर्स का था वही डायरेक्शन क्या था, acceleration। अब तस्वीर करें, if you say इससे it went vertically upwards, at this moment acceleration became zero। Acceleration being zero means there is no change in velocity। Since there is no change in velocity, the velocity will remain zero। ऑब्जेक्ट हवा में ही रुका रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड, इट मींस देयर वाज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तभी तो वो नीचे आ रहा होगा ना। आई बात समझ में, चले। Yes. व्हेन यू, So it's D. सो इट्स बी, D. नो व्हाई डी, एट मैक्सिमम हाइट मैंने कहा इट्स नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज देयर, इट्स नॉट जीरो, इट्स नॉट जीरो। दिस इज But velocity is equals to 0. So there is no velocity, no, acceleration. but acceleration is not zero, acceleration is not zero, acceleration is there, Can acceleration। you repeat why there is acceleration? Why is there acceleration? देखें, acceleration is not caused by velocity, acceleration is caused by the force। The force was there, ठीक है, it means the acceleration was there। चलें, अब मुझे एक और सिंपल सी बात बताएं। हम गाड़ी में बैठे, हमने इंजन स्टार्ट किया, and we drove our car from rest to a certain velocity। What you did first, did you provided the velocity or the acceleration? सोचिए। Velocity. Really? एक्सेलरेटर पहले दबाते ना, तभी तो गाड़ी चलेगी। But you're giving it a initial velocity. No, हाँ, तो giving initial velocity, it means increasing it from zero to a certain velocity। Isn't that a change in velocity? Yes. So that's what acceleration is। If we say an object accelerated from zero, ऐसे ही कहते हैं ना, accelerated from zero, तो it means accelerate, देखिए acceleration is change in velocity। When you provide a change, only then the value would change। दूसरा aspect से सोचो, if we say there is no acceleration, it means there is no change in velocity। It means if the velocity was zero, it would remain zero। If the object was in the air, it would remain in the air। Is that possible? No, the gravitational acceleration was there। चलिए कमाल की बात, when I am sitting stationary over here, even I have the value of gravitational acceleration, that is 9.81। My resultant acceleration is zero, लेकिन the gravitational acceleration is still 9.81। Am I not pulled by the earth? I am supported by the chair, that's a different point, but I am pulled by the earth। Consider the chair being vanished, मैं नीचे आ जाऊंगा। Why? Because the value of gravity, gravitational acceleration was there। It was balanced by any other acceleration, that's something else। लेकिन थी तो सही ना। W- When they said take vertically upwards as positive, were they referring to the acceleration or were they referring to the velocity? No, when they say taking vertically upward as positive, they are referring to the vectorial direction of every physical quantity। अगर वो कहते, let's say कि if the examiner would have asked about the velocity, so then rising up the velocity was positive, at the maximum height momentarily at rest the velocity was negative, coming downwards the velocity was negative। Why? Sorry, in momentarily पे rest पे it was zero, upwards positive, momentarily at rest zero,
कम नीचे आ रहा है नेगेटिव, बट इट्स टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ भी रिएक्ट कर रही है, यहाँ पर भी एक्ट कर रही है, यहाँ पर भी एक्ट कर रही है, एंड इन ऑल थ्री केसेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इन ऑल थ्री केसेस नेगेटिव। क्लियर हुई बात? थोड़ी थोड़ी नहीं, कंफ्यूजिंग। Yeah. हम्म Shouldn't we take I thought it was D because I thought that the rising since they said take vertically upwards as positive, I took vertically upwards like the acceleration when we were going upwards as positive 9.81 and then falling should be negative 9.81. No, it's actually not talking about the motion, it's talking about the direction of the physical quantity, right? It's talking about the direction of the physical quantity. The reason of showing this MCQ was not to confuse you guys. The reason of showing this MCQ was that okay, why do we consider positive value over here? It's not because it's like we discussed कि negative acceleration is deceleration. So negative acceleration is not always deceleration, जो चीज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ पर वो पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैंने कहा कि मैं इसी को जब कलेक्टिवली फॉर्मूला में डालूंगा तो वैल्यू वुड अल्टीमेटली कन्वर्ट टू नेगेटिव बिकॉज वेलोसिटी नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं इसी सिचुएशन में बोलूँ कि इट फेल फॉर लाइक 10 सेकेंड्स, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकाल दें। ठीक है, तो व्हेन यू राइट फाइनल वेलोसिटी, initial velocity is 0 because it was dropped. The value of acceleration is 9.81 and it took like 10 seconds. ठीक है, it took 10 seconds to fall. Now the question is कि सर यहाँ तो हम पॉजिटिव लेते हैं, बेटा इसलिए लिखते हैं। आप मुझे बताइए कि when ये जमीन पे हिट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव, ऐसे ही है ना? एंड अल्टीमेटली दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव वुड कैंसिल आउट ईच अदर। इस वजह से हम यहाँ पर वो नेगेटिव साइन नहीं लिखते। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट राइटिंग द नेगेटिव साइन, द सीन इज कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो कि इवन द वेलोसिटी वाज नेगेटिव ओवर हियर एंड द एक्सेलरेशन वाज आल्सो नेगेटिव ओवर हियर। ठीक है, हैव आई कंफ्यूज्ड यू गाइस इनफ टुडे? Yeah. ओके, चले, तो मुझे बस इतना बताइए सो फार, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? Yes. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? चलेगा। अच्छा, आई सिंपली डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी स्टूडेंट कि वो रेयरली इट्स लाइक ओके पहली दफा के अंदर सर बहुत ये कंफ्यूजन नहीं हुई है। इट्स वेरी कॉमन टू हैव द कंफ्यूजन इनिशियली, ठीक है ना? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओनली ऑन दिस कॉन्सेप्ट सो दैट पहले ये कंफ्यूजन दूर हो एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Okay. ठीक है। I'll be sending the lectures. I'll be sending the worksheet also. So जो previous lecture से related worksheets थी, do try the questions थे, do try those. And in the next class, we'll be further discussing the gravitational. खत्म तो कर ही चुके. We'll do the questions on this. ठीक है बच्चों? So we'll probably meet in the next class, inshallah. Wednesday, same timing. ठीक है? Okay. Okay. Love is. I love his.